Hello everyone, I am Archana Singh and today's video topic discussion is People and Environment of UGC NET Paper 1. We will discuss the most expected questions of this topic in this video lecture. So let's start. तो हम बात करेंगे इसमें जो कि प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो क्योटो प्रोटोकॉल हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल हैं और अभी पेरिस एग्रीमेंट है, उन सब से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। मैंने बहुत सारे वीडियो अभी हाल ही में डाला हुआ है क्विक रिवीजन के लिए, आप उसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। मैंने उस पर बहुत काम किया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, repeatedly asked questions I have uploaded for both paper English literature and paper 1, so you must have to check for better preparation. So let's start questions. सबसे पहले हम क्योटो प्रोटोकॉल के questions लेते हैं। The Kyoto Protocol was entered into force in the year, and here the right answer is 2005. Kyoto Protocol was entered into force in the year 2005, so please keep in mind. The next question is clean development mechanism was first introduced in which of the following international agreements? Clean development mechanism was first introduced in which of the following international agreements? Clean development mechanism को कौन से इंटरनेशनल एग्रीमेंट में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था? तो यहाँ पे भी जो राइट आंसर है वो क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। ओके, so now come to the next question. Next question is Kyoto Protocol aims at, Kyoto Protocol के क्या aims हैं? And here the right answer is containing emissions of greenhouse gases. Okay, Kyoto Protocol के aims क्या हैं कि ग्रीन हाउसेज जो वातावरण को पॉल्यूट कर रही हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, उन पे रोक लगाना है ना, उनको कम से कम उत्सर्जित होने देना। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, एंड वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ओके, इट वर्क्स फॉर betterment of climate. Okay, so come to the next question. In which of the following places were amendments to the Kyoto Protocol adopted? कौन से places में Kyoto Protocol के amendment को adopt किया गया था? And here the right answer is Doha. Okay, Doha is the right answer. Next question is Kyoto Protocol was signed by member countries at Kyoto, Japan in which year? कौन से ईयर में क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया गया था? इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जापान में साइन किया गया था। ओके, एंड विच ईयर? 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटोकॉल दैट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन इज, and definitely here also the right answer is option number 1, Kyoto Protocol. So now we can understand that Kyoto Protocol is talk about the climate change, the reduce of greenhouse gases. Now come to the next questions, and now we'll talk about the Montreal Protocol questions. Okay, and the very first question is identify from the options given below the co-benefits of Montreal Protocol. इन options में से हमें जो co-benefits जो है Montreal Protocol के, उनके बारे में बताना है। तो Montreal Protocol क्या है हम आगे के questions में डिस्कस करेंगे, और अभी हम उसके बेनिफिट्स और किस तरह से ये काम करता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो co-benefits क्या है? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर है। क्या है? रिडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस। जितने भी प्रोटोकॉल हैं वो इन्वायरमेंट पे ही काम कर रहे हैं, है ना, जो पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में हो रहा है उसके रिडक्शन पे ही काम कर रहे हैं। ओके,
The next question is given below are two statements. One is labeled as assertion and other is reason, and you have to find out the right answer. Here assertion is a Montreal Protocol is one of the most successful international conventions, and the reason is the parties to the protocol have successfully phased out 100% of their ozone depleting substances. Okay, so assertion क्या कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल कन्वेंशंस. यस, इट इज़ राइट. ओके, जितने भी प्रोटोकॉल्स आए हैं उनमें सबसे सक्सेसफुल कौन है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट. द रीजन इज द पार्टीज टू द प्रोटोकॉल हैव सक्सेसफुली फेज आउट 100% ऑफ देयर ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेज. नो, इट इज़ नॉट राइट. ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज सक्सेसफुल, इंटरनेशनल सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल, बट ये 100% जो है ये अपना काम किया और 100% सक्सेसफुल हुआ है ओजोन डिप्लेशन के सब्सटेंस को रोकने में, तो ये सही नहीं है. ओके, कुछ ना कुछ कमियां तो रही गई हैं, उस पर लगातार काम हो रहा है. तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है. ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स रेफर्स टू. अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए काम करता है? फेजिंग आउट द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस. ओके, तो ये ओजोन डिप्लेशन पे काम करता है. ओके, क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो किस पे काम कर रहा था? क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहा था. और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो मोस्ट सक्सेसफुल रहा है वो किस पे काम कर रहा है? ओजोन डिप्लेशन पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है द ओनली यूएन ट्रीटी रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज विच हैज़ बीन रैटिफाइड बाय ऑल 197 यूएन मेंबर्स स्टेट्स इज. तो कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि मोस्ट सक्सेसफुल रहा है और जिस पे 197 यूएन मेंबर्स की सहमति रही है ना? तो यहाँ पे जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही है राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पुट द वर्ल्ड ऑन अ लीस्ट कॉस्ट पाथवे टू लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 2 डिग्री सेल्सियस above the pre-industrial level global greenhouse gas emissions by 2030 with reference to 2017 require reduction to the extent of. ये कह रहा है कि हमें कितना ग्रीन हाउस गैसेस में रिडक्शन करना होगा, उसके एमिशंस में कितना रिड्यूस करना पड़ेगा कि हम 2030 तक और 2017 में जो बैलेंस बना के चल सके, क्योंकि 2030 तक और भी बहुत ज़्यादा एमिशंस होने लगेंगे. तो उसको बैलेंस करने के लिए कह रहा है कि ज़्यादा नहीं हो, वो 70 तक जितना 17 में होता था उस लेवल तक जाने के लिए, है ना. तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 25% है. ओके, हमें कितना ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा? 25% रिड्यूस करना पड़ेगा, जिससे कि हम बैलेंस बना सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मल्टीनेशनल फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज सेट अप टू प्रोवाइड financial and technical assistance to developing countries parties to Montreal Protocol, okay, whose annual per capita consumption and production of ozone depletion substances amount is less than. यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है कि एक मल्टीनेशनल फंड जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिया जा रहा है और वो उन्हीं को दिया जाएगा जिनके यहाँ की ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस कम से कम हो. ओके, उनके एमिशंस कम से कम हो रहे हों. ओके, उनके यहाँ ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस कम मात्रा में रिलीज हो रहे हों, और कितना रिलीज हो रहे हों वो अमाउंट होना चाहिए 0.3 kg से कम होना चाहिए. ओके, उन्हीं को ये मल्टीनेशनल फंड दिया जा रहा है, उनकी सहायता की जा रही है. अगर उनके यहाँ ओजोन डिप्लेशंस पे कंट्रोल किया जा रहा है तो उनको फंड दिए जा रहे हैं कि इस क्षेत्र में और आगे काम करे. वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको और अच्छा काम करने के लिए फंड दिया जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल एम टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय कीपिंग ग्लोबल टेम्परेचर राइज दिस सेंचुरी
वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा एग्रीमेंट है जिसका सेंट्रल थीम क्या है कि जो थ्रेट है क्लाइमेट चेंज है, उस ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कम किया जाए, 2 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जाए। तो कौन से एग्रीमेंट में ये सारी बातें हैं? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, पेरिस एग्रीमेंट। ओके, all the environmental works, all the issues, all the protocol, Montreal Protocol, Kyoto Protocol, all are working for the betterment of environment, and the Paris Agreement is about the keeping global temperature rise this century well below 2 degrees Celsius. Next question is, as per provisions of Paris Agreement, the intended nationally determined contributions are to be reviewed every 5 years. Okay, here the right answer is 5 years. In every 5 years, the Paris Agreement, the intended nationally determined contributors are to be reviewed. Next question is, climate pledges under Paris Agreement cover what fraction of greenhouse gases emission reduction needed to limit the global warming below 2 degrees Celsius? And here the right answer is, the fraction is 1/3. Okay. Next question is, formulation of long-term low emissions development strategy by each country was suggested under. So, low emissions स्ट्रैटेजी जो है वो किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? कौन से एग्रीमेंट में ये सजेशंस दिया गया था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस हैं उनको कम से कम किया जाए, बिलो 2 डिग्री सेल्सियस किया जाए, ओके, एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, ओके। सो कौन से एग्रीमेंट में हुआ था ये? पेरिस एग्रीमेंट में। आज की डिस्कशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, एंड very soon I will come with another video lecture and will discuss the important topics of both papers, English literature as well as paper 1. You can join my online course also, where we provide daily 2-hour discussion classes as well as the complete notes of both papers. Okay, thank you, stay blessed.